Assalamu alaikum. This is Dr. Sayyid Sajjad Hussain Rizvi. Today's lecture is about the network's basics. In this lecture, we will learn about the basic terminologies, basic protocol of a computer network. Additionally, we will cover about the different architecture and different types of communication network. We will also cover the different networking devices that are used inside a network. So primarily the scope of this lecture will be tri-folded. First, we will cover about the structure and the types of a network. Second, we covered about the topology of a network and networking devices and transmission media. To begin with, when we say a network is a collection of a components, that are connected through a communication line. When we say a computer network, that means there are multiple number of computing devices, internetworking devices that are connected together. Network could be of many type. A network could be a cellular network, a network could be a communication network, a network could be a computer network. यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, हम computer network की बात कर रहे हैं. That means the nodes will be the computers or the internetworking devices, and the users are supposed to use the network resources over the network. The first question is, why actually we need computer network? We need computer network in order to share the data. Like we have a data in one server, and that server can serve the data resources to multiple clients. For example, your HULMS is connected with your computer, आपके घर के कंप्यूटर के साथ connected है through a network, so that you can share the data resources of that server. It also used to share the files stored on a server. Like for example, Google Drive. You are using Google Drive server, or you are accessing a Google Drive server through a communication network, and it can be used for sharing the network application, the softwares. So primarily we use communication network to share resources, to share data, to share files over the clients. We can use computer network to share different devices or peripherals, like instead of placing a printer with each computer, we can set up a network of a computer and share one computer with multiple share one printer with multiple computers. Obviously, it reduces the cost per users, and devices can be connected through the network. Like for example, आपके पास एक printer है और आपके पास 5 users हैं, और आप हर यूज़र को प्रिंटिंग फैसिलिटी देना चाहते हैं. एक तरीका तो ये है कि आप हर यूज़र के साथ एक प्रिंटर अटैच कर दें. दूसरा तरीका है कि आप उन तमाम यूज़र्स को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दें और उस नेटवर्क के साथ एक प्रिंटर भी अटैच कर दें, सो दैट ऑल द 5 यूज़र्स कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर प्रिंटर over the network. So in this way we can share different resources. Similarly, you can share the storage. जितने भी हम cloud use करते हैं, cloud devices, Dropbox use करते हैं या Google Drive use करते हैं, तो we have a central storage and we are using or sharing that network resources, that is storage, with multiple clients. For example, this is one server. It has a storage media, and all the devices are connected with this computer, with this server, to share the resources. We can use network for personal communication, like email, for like video conferencing, for like voice over IP or VoIP services. For example, you are using WhatsApp calling, it is voice over IP. You are using Google Meet or Skype for conferencing. You are using Google for emailing. Like there is one server, there is a computer, and you are connected to a backbone network. A network, another is easier to back up. Like for example, you have a data resources on multiple distributed computers, और आप उन तमाम computers का data एक central repository में store करना चाहते हैं. For that you can use a computer network. For example, एक बैंक है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं. हर एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर पे बैठ के ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन उन तमाम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड उन लोकल मशीन्स पे रहने के बजाय वो एक सेंट्रल सर्वर, एक सेंट्रल रेपोजिटरी के ऊपर जाके स्टोर होगा थ्रू द नेटवर्क. A network
can be classified into different types like local area network, like wide area network, like metropolitan area network, like personal area network. इसको पहले थोड़ा सा हम इस तरह समझते हैं कि हैं ये सारे नेटवर्क, इनकी क्लासेस अलग अलग जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं इनके स्कोप के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक स्मॉल जोग्राफिकल लोकेशन के पीसीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, किसी स्कूल के पीसीज़, यूनिवर्सिटीज़ के पीसीज़, ऑफिस के पीसी, किसी एरिया के एक गली के लोगों के पीसीज़, जैसे केबल नेट है आपका. इन तमाम पीसीज़ को अगर स्मॉल जोग्राफिकल लोकेशन तक कनेक्ट कर दिया जाए तो दैट बिकम्स अ लोकल एरिया नेटवर्क. Each local area network is administrated by an administrator. There must be an administrator who is responsible to administrate all the network traffic over the LAN. This is a biggest advantage of a local area network because each local area network has its own administrator. For example, आपके अपने एरिया में अगर केबल नेट है तो केबल नेट का एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क है तो वहाँ का उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, स्कूल के अंदर या ऑफिस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हैं, उन तमाम नेटवर्क के साथ जितने भी पीसीज कनेक्टेड हैं वो सब एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटर के पास से एडमिनिस्ट्रेट होंगे. वो कंप्यूटर सर्वर जिसके थ्रू लैन का डेटा लैन से बाहर जाएगा, उस कंप्यूटर, उस सर्वर को हम कहते हैं गेटवे. गेटवे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वर है, आपका जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है वो उस गेटवे से जाएगा. इसी को अगर बड़े डोमेन पे देख लें तो पाकिस्तान का भी एक गेटवे है, जैसे पीटीए, वो पाकिस्तान का गेटवे है. तो वो तमाम पॉलिसीज़ जो कि पीटीए अपने गेटवे पे लगाएगा वो उन सब के ऊपर लागू होगी जो पीटीए के थ्रू जा रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं. फॉर एग्जांपल आज अगर फेसबुक को बैन कर दिया जाए तो वो फेसबुक को आप दुनिया भर में बैन नहीं कर सकते, फेसबुक को आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर बैन कर सकते हैं. सिमिलरली आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अगर चाहता है कि जी कोई मैसेजिंग सर्विस ना चले तो वो दुनिया भर में मैसेजिंग सर्विस बंद नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मैसेजिंग सर्विस को बंद कर सकता है. क्यों? क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास अपनी लोकल एरिया नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, यानी वो तमाम पीसीज जो उस लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है. जब बहुत सारे लैंड्स को आपस में इंटीग्रेट कर दिया जाए, 2 और मोर लैंड्स इनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन, जिसको हम इंटरनेट भी कहते हैं. मज़े की बात यह है कि देयर इज़ नो वन हु ओन्स द वैन. लैन की तो ओनरशिप होती है, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ द ओनर ऑफ द लैन. वैन की कोई ओनरशिप नहीं है, यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट का मालिक कौन है तो इंटरनेट का मालिक कोई भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इंटरनेट या वैन इटसेल्फ कोई नेटवर्क नहीं है, बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लैंड्स. हर लैन का अपना एडमिनिस्ट्रेटर है, वो अपनी नेटवर्क सर्विसेज को एडमिनिस्ट्रेट करेगा, और जब वो तमाम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपनी अपनी लैन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो हम एक वैन के साथ कनेक्ट होंगे, और वो तमाम पॉलिसीज़ जो वाइड एरिया नेटवर्क पे अप्लाई हो रही हैं वो सब लोकली एडमिनिस्ट्रेट होंगी अपनी लैन के थ्रू. फॉर एग्जांपल एक सर्विस है जैसे जिसको हम कहते हैं टॉरेंट्स. टॉरेंट पाकिस्तान में अलाउड है, कनाडा और सऊदी अरेबिया में अलाउड नहीं है. इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड नेटवर्क पे वो अलाउड है, लेकिन किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने उस सर्विसेज को ब्लॉक किया हुआ है. फिर एक हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क है. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ लैन, बट जोग्राफिकली इट इज़ ऑफ अ बिगर डोमेन, क्योंकि एक स्मॉल जोग्राफिकल लोकेशन में तो हम लैन है, लेकिन अगर हम एक कैंपस की बात करें विच इज़ अ ह्यूज कैंपस तो वी यूज़ सैन्स कैंपस एरिया नेटवर्क. लाइक फॉर एग्जांपल हमदर्द यूनिवर्सिटी में जितने भी पीसीज़ हैं वो तमाम पीसीज़ एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं. सिंस वी हैव अ लार्ज जोग्राफिकल लोकेशन सो वी कॉल इट अ सैन कैंपस एरिया नेटवर्क. इफ़ वी फर्दर एक्सटेंड the scope of a network up to the metropolitan city, a city level, a regional level, we call it a MAN or a metropolitan area network. यानी सबसे पहले लैन को बढ़ा दिया जाए तो वो सैन, उसको मज़ीद सिटी लेवल पे लेके आया जाए तो वो मैन. फॉर एग्जांपल आपका वाइट ट्राइब इट्स अ मैन, ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के ऊपर रन कर रहा है. अ वेरी स्मॉल नेटवर्क, होम स्केल नेटवर्क अगर हम बात करें तो वी हैव हैन.
होम एरिया नेटवर्क, यानी सिर्फ एक घर के अंदर कुछ set of computers, some couple of computers, if they are connected together, we call it a home area network. If in a room we have some 2 or more PCs and they are connected together, we call it a personal area network or PAN. A network could be a server based network, means there must be one server and multiple clients. Server is supposed to provide services to all the clients. This is one of the structure of a network, means there must be one server and all the clients are connected with the server. For example, IULMS, HULMS is a server. HULMS is a server and your PCs are the clients of that server, and through internet you are using or accessing that server. इसी तरह वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स जितनी भी होस्ट होती हैं वो तमाम वेबसाइट्स सर्वर पे होस्ट होती हैं. सर्वर आर अप 24/7 और आप ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट सर्वर को एक्सेस करते हैं जिस पे वेबसाइट पड़ी है और वहाँ से आपको वेब रिस्पॉन्स मिलता है. We have different clients with the server and all the nodes that are connected with the server, they are termed as clients. We can have a peer-to-peer network. In a peer-to-peer network, there is no server involved in it. यानी अगर दो PCs को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए, it is a sort of a peer-to-peer network. टॉरेंट्स जो यूज़ किए जाते हैं, इट इज़ अ पेयर टू पेयर नेटवर्क, क्योंकि टॉरेंट्स के अंदर आप किसी सर्वर से डाटा डाउनलोड नहीं कर रहे होते, बट आप किसी दूसरे पीसी से, किसी दूसरे क्लाइंट के पीसी से डाटा शेयरिंग या रिसोर्स शेयरिंग या डिवाइस शेयरिंग कर रहे होते हैं, एंड वी कॉल इट अ पेयर टू पेयर नेटवर्क. नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये तो हमने अभी बात की नेटवर्क टाइप्स की, उसके स्कोप के हिसाब से. स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो हम इसको कहते हैं टोपोलॉजीज. टोपोलॉजी इज हाउ द नेटवर्क इज स्ट्रक्चर्ड. In a topology, we used to transfer the packets. Packets is a simple piece of data that is transmitted over a network. Each packet is identified with its header. Header contains the information about the sending and the receiving address of a data. A packets must contain the data that we call at a packet payload. Amount of data that a packet can travel can carry, it's called a payload. And there are some error control mechanism in the packet, like if there is a packet drop, there must be a retransmission policy of a packet. एक पैकेट अगर ड्रॉप हो गया, उसमें एरर था, तो वो रीट्रांसमिट होगा. टोपोलॉजीज के हिसाब से बात करें तो बस टोपोलॉजी. इन बस टोपोलॉजी वी हैव अ सेंट्रल कनेक्टिंग नोड जिसके साथ मल्टीपल पीसीज का नोड क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं. ये आपकी मेन कोर लाइन कहलाती है और इसके साथ जो ये केबल्स हैं ये ड्रॉप डाउन केबल कहलाती हैं. इस नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि एक तो इजी टू सेटअप है, स्मॉल हमें लेस अमाउंट ऑफ वायरिंग रिक्वायर्ड है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ से अगर बैकबोन नेटवर्क ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन होगा. और अगर तमाम पीसीज को, सिस्टम्स को एक साथ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करनी हो तो वो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. देयर मस्ट बी अ कोलिजन. For example, if this workstation wants to communicate with this laptop and at the same time this laptop wants to communicate with this printer, so there must be a collision. So there is a arbitrator, a server that arbitrates the network services over the bus topology. So disadvantage, it is slow and it is easy to crash. हम यूजुअली उन नेटवर्क के अंदर बस टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन या को करंट कम्युनिकेशन ना हो. जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो बस टोपोलॉजी पे आ रही है. आपके घर पे केबल टीवी आ रहा है, वो बस टोपोलॉजी पे आ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ उसमें डाटा रिसीव कर रहे हैं, ट्रांसमिट कुछ नहीं कर रहे हैं. तो दिस इज़ एडवांटेज कि ऐसी तमाम नेटवर्क जहाँ पर आप सिर्फ डाटा को रिसीव कर रहे हों, वहाँ पे हम वी कैन यूज़ बस टोपोलॉजी. हाउएवर इफ़ यू हैव सच अ सिनेरियो जिसमें आप डाटा को बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए वी कैन यूज़ द स्टार टोपोलॉजी. इन अ स्टार टोपोलॉजी ईच क्लाइंट इज़ कनेक्टेड विद अ सेपरेट वायर. ये तमाम क्लाइंट हर एक के साथ सेपरेट कनेक्टेड हैं. इसमें कोई अगर एक लिंक ब्रेक भी हो जाए तो बाकी क्लाइंट्स पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और हर क्लाइंट इंडिविजुअली कम्युनिकेट कर सकता है
को करंटली यानी पैरेलल में एक साथ सब लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूजुअली हमारे यहाँ जो केबलिंग होती है केबल नेट की, वो स्टार टोपोलॉजी पे है। उसकी एक फर्दर एक्सटेंडेड फॉर्म हम यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड स्टार, यानी ये स्टार है, इसके साथ एक और स्विच लगा के कुछ और पीसीज कनेक्ट कर दिए गए तो वो बन जाएगा एक्सटेंडेड स्टार। Then we have a ring topology in which all the clients are connected in a ring. एडवांटेज इसके ये है कि टाइम टू सेंड डेटा इज़ नोन, हमें पता होता है कि ये यहाँ से एक डेटा ट्रांसमिट हुआ है तो वो डेटा तमाम सिस्टम्स पे अपडेट होके अगर इस क्लाइंट से डेटा इस क्लाइंट पे आना है तो वो तमाम पीसीज में अपडेट होता हुआ आएगा। डिसएडवांटेज इसमें कोलिजन कोई नहीं होगा। डिसएडवांटेज ये कि स्लो है और लॉट्स ऑफ केबलिंग इज़ रिक्वायर्ड। मैश टोपोलॉजी इज़ द मोर रोबस्ट टोपोलॉजी, लेकिन बहुत कॉस्टली टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में हर पीसी दूसरे पीसी के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल दिस मशीन इज़ कनेक्टेड विद दिस मशीन एंड दिस मशीन। लाइक अगर यहाँ कोई अपडेट होगी तो वो बाकी तीनों पीसीज के ऊपर भी होगी। इस ग्रीन पीसी पे कोई अपडेट होगी तो ये भी बाकी तमाम पीसीज के ऊपर अपडेट होगी। तो वी कॉल इट एज अ मैश टोपोलॉजी। सो दिस वॉज अबाउट द टोपोलॉजीज़। हमने बात की कि नेटवर्क क्या है, फिर हमने ये बात की कि नेटवर्क की टाइप्स कितनी होंगी, लैन मैन वैन सैन। फिर हमने बात की कि नेटवर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से कितनी टाइप होंगी, उसमें बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार और मैश टोपोलॉजी को हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द कम्युनिकेशन मीडिया। अ कम्युनिकेशन मीडिया is a medium through which we transport the data. Communication media can be a guided media or it can be an unguided media. All the wired media is called a guided media and all the wireless media is called the unguided media. इसमें जो हम एक सबसे पहला ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबलिंग कहलाती है, जो आप अपने लैन में इस्तेमाल करते हैं। इसको कैट 5 भी कहते हैं और 100 बेस टी भी कहते हैं। There are 4 pairs of copper wires that are twisted together and they are shielded to reject any amount of noise. अगर कोई noise या कोई interference इन सिग्नल पे आएगी तो ये shielding जो एल्युमिनियम शील्डिंग है वो उसको रिजेक्ट करेगी। The typical range of Cat 5 is 1 Mbps to 1000 Mbps. Another guided transmission media is coaxial cable. Coaxial cable जो हम केबल टीवी के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके अंदर वी हैव वन कोर, एक सेंट्रल वायर इज़ अ कोर वायर और उसका जो शील्डिंग है दैट प्रोवाइड्स द रेफरेंस सिग्नल। यूजुअली जब हमें वीडियो या ऑडियो ट्रांसमिशन करनी हो तो उसके लिए हम कोएक्सियल केबल को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बैंडविड्थ या स्पीड इज़ 10 Mbps। आजकल अब नेटवर्क्स में इस्तेमाल नहीं की जाती कोएक्सियल केबल, बट इट इज़ यूज्ड इन अ टीवी और अ केबल टीवी नेटवर्क। ऑप्टिकल फाइबर इज़ ऑल्सो अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, वायर ट्रांसमिशन मीडिया। ऑप्टिकल फाइबर में देर इज़ नो कॉपर वायर बट देर इज़ अ ग्लास, देर इज़ अ ट्यूब, देर इज़ अ ग्लास ट्यूब जिसके अंदर हम डाटा ट्रांसपोर्ट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ लाइट। इसके 2 पार्ट होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड कोर, और जो आउटर पार्ट आपको नज़र आ रहा है इट इज़ कॉल्ड क्लैडिंग। फिज़िक्स में आपने एक फिनोमिना पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल या उससे बढ़ेगा तो आपकी लाइट रे रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट होगी। तो ऑप्टिकल फाइबर इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हम डाटा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, जो कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो हमें बैंडविड्थ मिलती है, स्पीड मिलती है, वो 100 Gbps तक स्पीड मिल सकती है। वी कैन यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, जिसके लिए हम टिपिकली रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोवेव सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारी वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, मोबाइल BTS, दे ऑल द PCs आर कनेक्टेड थ्रू अ वायरलेस मीडिया। Now let's come towards network hardware.
तो हमने यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया में बात की कि ट्रांसमिशन मीडिया ऐसा मीडियम जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वो गाइडेड यानी वायर्ड भी हो सकता है, वो अनगाइडेड यानी वायरलेस भी हो सकता है। गाइडेड की हमने टाइप देखी, गाइडेड में ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है। अनगाइडेड में ब्लूटूथ, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स आर द टाइप्स ऑफ wireless transmission media. Now let's come towards network devices. Network devices are, इसको हम inter-networking devices भी कहते हैं, devices that are connected inside a network other than the computer. इसमें जो सबसे बेसिक हम यूज़ करते हैं, it is called NIC और Network Interface Card, also called as Network Adapter. It provide a interface टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क। यानी अगर मुझे अपने पीसी को किसी लैन के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए मैं ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाऊंगा। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, यानी दुनिया में जितने भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस है। उस यूनिक एड्रेस को हम मैक एड्रेस कहते हैं, यानी यूनिक मशीन एक्सेस कोड एड्रेस। A network device can be used to link different devices, यानी हम क्रॉस केबल के थ्रू या स्ट्रेट केबल के थ्रू we can connect different networks. Hub is a network distribution device, यानी नेटवर्क सर्विसेज को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है among the client तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हब। हब की जो ड्रॉप, इसमें दो फिनोमिना होता है, एक होता है फ्लडिंग, एक होता है फॉरवर्डिंग। फ्लडिंग का मतलब यह है कि हब के एक एंड पे जो डेटा आएगा वो तमाम क्लाइंट्स को चला जाएगा विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, इसको कहते हैं फ्लडिंग। फॉरवर्डिंग कहलाता है कि एक पोर्ट पे डेटा आया और किसी खास इंटेंडेड पोर्ट को ही गया, उसको हम कहते हैं फॉरवर्डिंग। तो हब सिर्फ फ्लडिंग करता है, फॉरवर्डिंग नहीं करता। हब के बाद स्विच है। स्विच भी इज़ अ टाइप ऑफ अ हब, बट ये फ्लडिंग भी कर सकता है और ये फॉरवर्डिंग भी कर सकता है, यानी कि इसकी एक पोर्ट के ऊपर जो डेटा आएगा वो बाकी तमाम पोर्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर देगा, और अगर किसी खास यूज़र को ट्रांसपोर्ट करना है तो ये फॉरवर्ड भी कर सकता है। जब हमें दो से ज़्यादा लैन्स को आपस में ज्वाइन करना हो तो उनके दरमियान हम एक कॉमन ब्रिज बनाते हैं, एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिज। यानी हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब और स्विच, ये तीनों हार्डवेयर लैन के अंदर इस्तेमाल होंगे, लैन से बाहर इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन जब आपको दो या दो से ज़्यादा लैन्स को आपस में कनेक्ट करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्रिज। फिर आता है राउटर। राउटर जब भी आपको एक लैन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है, मल्टीपल लैन्स के साथ कनेक्ट करना है इंटेलिजेंट मैनर में, तो वी कैन यूज़ राउटर्स। राउटर्स आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा बिटवीन लैन एंड बिटवीन योर वैन। यानी आप जब राउटर को, अगर आपके घर में जो PTCL का राउटर रखा हुआ है उसमें आप देखें आपको दो तरह की पोर्ट मिलती है, पीछे लैन भी लिखा होता है, वैन भी लिखा होता है। ये राउटर आपको लैन को कनेक्ट करता है वैन के साथ। वी हैव गेटवेज। गेटवेज इज़ यानी एक लैन का जो सारा ट्रैफिक है वो तमाम ट्रैफिक एक जगह पे जाके कन्वर्ज होगा और वहाँ से उस लैन से वो दूसरे लैन की तरफ जाएगा। तो वहाँ पे हम एक गेटवे बना, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कूल है, स्कूल के अंदर आने के लिए एक गेट बना हुआ है, इसी तरह नेटवर्क के अंदर आने के लिए भी एक गेट बना होगा जिसको हम गेटवे कहते हैं। इट्स अ हार्डवेयर। हम जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं, वायरस प्रोटेक्शन लगाते हैं, वो सब हम गेटवे पे लगाते हैं। जैसे अक्सर ऑर्गेनाइजेशन जब एंटीवायरस परचेज़ करती हैं तो हर पीसी का अलग वायरस परचेज़ नहीं करते, वो वायरस परचेज़ करते हैं सिर्फ गेटवे के लिए, क्योंकि बाहर से जो भी ट्रैफिक आएगा अगर उसमें वायरस है तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक हो जाएगा, अंदर के पीसीज सिक्योर रहेंगे। ऐसे अंदर से अगर सिस्टम से कोई वायरस जनरेट हो रहा है तो वो गेटवे पे ही ब्लॉक होगा, गेटवे से बाहर नहीं जाएगा। डिवाइसेस के बाद हम
एक प्रोटोकॉल के ऊपर बात करेंगे जिसको हम कहते हैं TCP/IP। TCP/IP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी जिसको हम IP कहते हैं। ये देखिए प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है। प्रोटोकॉल कहलाते हैं सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल का मतलब है नेटवर्क के रूल्स। क्योंकि देखिए जो अगर हम रूल्स की बात करें तो दुनिया भर में अगर सिर्फ हम ट्रैफ़िक की बात करें तो ट्रैफ़िक के कवानीन अलग अलग हैं। कोई एक कानून नहीं है जो कि पूरी दुनिया में ट्रैफ़िक का लागू होता हो। मैं आपके ये व्हीकल ट्रैफ़िक की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, किसी जगह पे राइट हैंड ड्राइव है। नेटवर्क सिंबल्स ट्रैफिक सिंबल्स अलग अलग हैं। तो एक आदमी अगर एक कंट्री में गाड़ी चला रहा है और वो दूसरी कंट्री में जाके गाड़ी चलाना चाहता है तो उसको वहाँ के रूल्स पहले सीखने पड़ेंगे। जबकि नेटवर्क में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क में हमने यूनिफाइड रूल बना दिए हैं जो वर्ल्ड वाइड हैं, यानी पूरी दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं जब वो ओवर द नेटवर्क आएंगे तो वो एक कॉमन रूल पे आएंगे, जिस रूल को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं। तमाम डिवाइसेस जो कि नेटवर्क पे आ रही हैं उनके लिए इन रूल्स को ओबे करना ज़रूरी है। हर पीसी जैसे ही नेटवर्क पे आता है उसको एक एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आईपी एड्रेस स्टैटिक भी हो सकता है कि यानी आपको हर दफ़ा एक ही आईपी एड्रेस मिले, और ये आईपी एड्रेस डायनेमिक भी हो सकता है, यानी कि हर दफ़ा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे आपको एक डिफरेंट सेट ऑफ आईपी एड्रेस मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें उसको पूरा समराइज़ करें तो हम देखते हैं कि नेटवर्क्स की अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ देखें तो नेटवर्क की टाइप्स हमने देखी, नेटवर्क का स्ट्रक्चर देखा, नेटवर्क पे जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होता है उसको देखा, टोपोलॉजीज़ देखी, और नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में टर्मिनोलॉजीज़। ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ी इट इज़ नॉट अ इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि नेटवर्क इटसेल्फ एक पूरी ब्रांच है, पूरी स्टडी है। हमने अभी सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजीज़ के साथ फेमिलियरिटी हासिल की है जो कि हमारे इस कोर्स का स्कोप है। थैंक यू।